So today we are going to discuss about the abdomen. So this is the introductory section of the abdomen. We will confine ourselves to these four things. And we will cover or discuss as much as we can discuss. Whatever will be left we will cover in next lecture. So before starting, let me ask, what are the planes of the abdomen? Mean to say is at what level of the vertebral column, at which vertebrae the umbilicus lies. Level of the umbilicus with respect to the vertebral column. Means if you traverse from the umbilicus and reach up to the vertebral column, which vertebra you will encounter? The second question is, whatever level of the xiphoid process is. And the third question is, which dermatome or the spinal nerves supplies the skin around the umbilicus or at the level of umbilicus? So the L3 and L4 disc in between the L3 and L4 lies at the level of umbilicus. Although umbilicus is inconsistent in its position, changes in case of pendulous abdomens and pregnancies. But in a normal adult, it lies at the level of disc between the L3 and L4. And the level of the xiphoid process is the T10. It's the T10. And the third thing is the level of the iliac crest, or particularly if I say iliac tubercle, is L5. तो देखो एब्डोमेन में नेक्स्ट 1 और 2 मंथ 1.5 मंथ आप एब्डोमेन पढ़ेंगे, ठीक है, डिसेक्शन हॉल में और लेक्चर्स में. बट अगर आपको जो लेवल्स अगर पता नहीं है, प्लेन्स, वेरियस वर्टिब्रल लेवल्स ऑफ द डिफरेंट एब्डोमिनल लैंडमार्क, वेरियस प्लेन्स ऑफ द एब्डोमेन and the various quadrants of the abdomen, if you don't know about these three things, there is no meaning in mugging the coming lectures or the coming things in your dissection hall. So the first and foremost thing is, तुम्हें इन्विटेशन देना पड़ेगा, पीछे क्यों जाके बैठ जाते हो बार बार, जब तक आगे स्पेस है यहीं बैठोगे. So things to be noticed in this image are the xiphoid process at the level of T10. Level of umbilicus is the
disc between the L3 and L4, and the level of the iliac crest or iliac tubercle is the L5. Accordingly, the three imaginary planes are described here in the red dotted horizontal lines. But mind it, they are not used to divide the abdomen in 9 quadrants. The upper plane is the transpyloric plane. It passes through the pylorus part of the stomach. Through the lower border of L1. Through the lower border of L1. Then comes the subcostal plane, upper border of L3, and the transtubercular plane is at the upper border of L5. Other things are the costal margin. This is the costal margin. What is called as subcostal? Below the ribs, and it says specifically below the 12th rib. Below the 12th rib, that is the subcostal, and the costal margin is formed by the lower 5 or 6 ribs along with their cartilages. तो जो लोअर 5-6 रिब्स हैं उनके जो कार्टिलेजेस हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कॉस्टल मार्जिन. ठीक है. Then there is a thing like inguinal ligament. Inguinal ligament. Yes, you बताओ inguinal ligament का extension. प्यूबिक सिम्फाइसिस तक या प्यूबिक ट्यूबरकल तक? प्यूबिक ट्यूबरकल तक. ठीक है. देखो प्यूबिक सिम्फाइसिस ये मिड लाइन में है. ये क्या है? प्यूबिक सिम्फाइसिस. 2.5 सेंटीमीटर लेटरल टू प्यूबिक सिम्फाइसिस इज द प्यूबिक ट्यूबरकल. You can note down the level of the umbilicus. ठीक है. Then come to the soft tissue landmark. The soft tissue landmark. In the midline there is a fibrous racew from the xiphoid process up to the pubic symphysis is called as linea alba. Linea alba. Linea alba in the midline, and at the parasagittal position to this linea alba, these red lines are called as linea semilunaris. Linea semilunaris. Actually, linea semilunaris represents the lateral border of the strap muscle of the abdomen. Strap muscle of the abdomen. So which is the strap muscle of the abdomen? Rectus abdominis. ठीक है. कौन सी होती? Rectus abdominis. So focus on the costal margin. So the linea semilunaris and the costal margin meets at the tip of the 9th costal cartilage. So it may be a question for your
Next, meeting point of the linear semilunaris and the costal margin is tip of 9 costal cartilage, tip of 8, 7, 6. Then there are some horizontal irregular lines, they are called as linea gravidarum, white lines of pregnancy or postpartum. Yes, hello. बेटा ऐसे कोई मोदी जी की सभा थोड़ी हो रही है, चलो. नो नो सॉरी, तुमसे पहले वाले को अलाउ नहीं किया है. तुम 9:30 बजे तक आते रहोगे और ऐसे चलता रहेगा क्या क्लास? So focus on the linea gravidarum and the inguinal line, the line of the inguinal ligament, which is also called as Pupat's line, because the other name for the inguinal ligament is the Pupat's ligament. Holden's line or line of Venus is not that much important, so we will move on. In this image there are 3 or 4 new things. कौन कौन सी नई चीजें हैं इसमें? 4 जो पहले वाली इमेज में. One is McBurney's point. देखो कौन कौन सी उसमें 4 नई चीजें हैं. McBurney's point, line और Murphy's point, tendons of intersection, tendinous intersection, tendinous intersection. जो 6 पैक्स जिनको कहते हैं, ठीक है, 6 पैक्स एब्डोमिनल, दे आर टेंडिनियस इंटरसेक्शंस ऑफ द एब्डोमिनिस, रेक्टस एब्डोमिनिस मसल. जब तुम लोग डिसेक्शन करोगे तो तुम्हें बिल्कुल क्लियरली जो है टेंडिनियस इंटरसेक्शंस दिखेंगे एब्डोमेन में. ठीक है, अब एब्डोमेन का डिसेक्शन स्टार्ट होने ही वाला है. एक बार ये ब्रेन तो हो ही गया है, तो उसके बाद अभी एक बार थोरेक्स करके कोस्टल मार्जिन्स को अपलिफ्ट करके पूरा आपको दिखा देंगे अंदर से हार्ट एंड लंग्स. देन वी विल मूव ऑन टू डायफ्राम, देन टू एब्डोमेन. ठीक है, देखो सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग. Anyway, so McBurney's point is the point of maximum tenderness in case of acute appendicitis. The patients of acute appendicitis, they comes to the OPDs complaining of pain in the right iliac fossa, right iliac fossa. So McBurney's point is point at the junction of 2/3 medial 2/3 and lateral 1/3 of a line which connects the umbilicus to the anterior superior iliac spine. तो बहुत इंपॉर्टेंट है McBurney's पॉइंट. आपके एमसीक्यू में भी पूछते हैं, वाइवा में भी पूछते हैं, क्लिनिकल एग्जामिनेशन में जब पेशेंट लाई डाउन होगा उसमें भी आपको क्लिनिशियन या एक्सटर्नल एग्जामिनर पूछता है कि शो टेल मी अबाउट दी और दी सरफेस मार्किंग फॉर दी McBurney's पॉइंट. ठीक है, नेक्स्ट इज मर्फीज पॉइंट. मर्फीज पॉइंट हमने पिछली इमेज में भी डिस्कस किया था, बट उसको
जो है नेम उसका हमें यही दिखा है, ठीक है। लीनियस एमिलियोनेरिस which is the lateral border of the rectus abdominis muscle, lateral border of rectus abdominis muscle when it meets to the costal margin at the tip of ninth costal cartilage, tip of ninth costal cartilage, ठीक है। सुन आ गया मैकबर्नीज पॉइंट, ये मर्फीज पॉइंट। हाँ तुम बताओ, व्हाट इज मर्फीज पॉइंट? शर्मा क्यों रहे हो, ऐसा क्या पूछा है? देखो सामने वहां, उसमें देख के बोल दो। अभी तुम्हें दोस्त बता रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, फिर तुम्हें जब डॉक्टर बन जाओगे ओटी में क्या पापा मम्मी साथ चलेंगे, ऐसे इंसिजन लगाओ बेटा, ऐसे ऑपरेट करो, ना पड़ेगा ना। पिछले 10 मिनट से यही डिस्कस कर रहे हैं मेक मर्फीज पॉइंट, और तुम इधर आ जाओ, बाहर आ जाओ, यहाँ बैठो इस तरफ आके। Then comes the superficial inguinal ring. Superficial inguinal ring is a triangular slit in the aponeurosis of the external oblique muscle. Aponeurosis of external oblique muscle. This is a triangular slit. ठीक है, on opening. तो क्या बोलते हैं हम? Superficial inguinal ring. So there must be a deep inguinal ring. So deep inguinal ring lies just above the middle of the inguinal ligament, middle of the inguinal ligament. So there are two terms. One is the midpoint of the inguinal ligament, दूसरा मिड इंग्वाइनल पॉइंट, ठीक है। देखो जो मिड पॉइंट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट है वो हम किसका मिड ले रहे हैं? इंग्वाइनल लिगामेंट का, जो एक्सटेंड करा प्यूबिक ट्यूबरकल से एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन तक। मिड इंग्वाइनल पॉइंट के लिए जो मीडियल एंड है वो शिफ्ट हो जाएगा प्यूबिक सिम्फाइसिस। समझ आ रही बात? तो मिड इंग्वाइनल पॉइंट जो होगा वो क्या होगा? थोड़ा सा मीडियल, दैट विल बी लिटिल बिट मीडियल द मिड पॉइंट ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट। समझ आ गया? पाथ के पास जो बैठा है, हाँ तुम क्या बताया अभी? मिड इंग्वाइनल पॉइंट एंड मिड पॉइंट ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट। इधर कौन बताएगा? मिड इंग्वाइनल पॉइंट एंड मिड पॉइंट ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट। हाँ हाँ, is anyone from this side? Yes, you. Mid inguinal point, mid point of the inguinal ligament. समझ आया? एक तो आपको प्यूबिक सिम्फाइसिस से एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन तक लाइन लेनी है, दूसरी प्यूबिक ट्यूबरकल से
एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन तक लाइन है। देखो एक तो इसका हो गया मिड पॉइंट, इस लाइन का जो ग्रीन वाली दिख रही है। दूसरे अगर आप यहां से ड्रॉ करेंगे प्यूबिक सिम्फाइसिस से, ये प्यूबिक ट्यूबरकल है, तो उसका पॉइंट यहां पे इस तरफ होगा, इसके मीडियल में, मिड इंग्वाइनल, मिड पॉइंट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट के मीडियल में। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कितना होता है प्यूबिक ट्यूबरकल से प्यूबिक सिम्फाइसिस? 2.5। तो यहां पे कितना डिफरेंस होगा दोनों पॉइंट्स में? 1.25। गुड, तुम भी इधर आ जाओ, यहां इनके पास, इधर आते जाओ जैसे जैसे। ठीक है, सो जो मैं बात कर रहा था कि मिडल ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट के जस्ट ऊपर होती है डीप इंग्वाइनल रिंग। क्या होती है? डीप इंग्वाइनल रिंग। ठीक है, so spermatic cord, when it is formed at the upper part of the scrotum, it ascends from the pelvis into the abdomen. It pierces the deep fascia of the abdomen, that is the fascia transversalis, and enters into the deep inguinal ring, then traverses through the inguinal canal and comes out from the superficial, sorry, it's actually opposite. ठीक है, स्पर्मेटिक कॉर्ड जो है स्पर्मेटिक कॉर्ड के जो कंटेंट है उस पर भी डायरेक्ट फुल क्वेश्चन आता है, और इसका जो कोर्स that we will discuss in next image is about the formation of the inguinal canal, the inguinal ring. ठीक है, वो आज इतना शायद हो नहीं पाएगा आपके इतना लेक्चर टाइम। So these are the 8 layers which you will encounter or face when you start entering into the abdomen. The most superficial is then comes then external oblique muscle, internal oblique, then after that fascia transversalis, and the last one extraperitoneal tissue, then the peritoneum. So parietal peritoneum, as in case of the parietal pericardium or the parietal pleura. ठीक है, the outer covering of the intestine. Visceral peritoneum is adherent to the intestine. ऐसे था ना, विसरल प्लूरा एकदम लंग्स के ऊपर चिपका हुआ, विसरल पेरिकार्डियम बिल्कुल हार्ट के ऊपर चिपकी हुई। तो पेरिटोनियल कैविटी क्या होती? विसरल लेयर ऑफ पेरिटोनियम और पैराइटल लेयर ऑफ पेरिटोनियम के बीच का स्पेस। So these are the layers of the abdomen. When you enter into the abdomen, just lateral to the this lateral border of rectus abdominis. अगर आप यहां से जाएंगे तो एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा, एक रेक्टस एब्डोमिनिस भी होगा। ठीक है, ये जो मसल्स हैं एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस एंड फेशिया ट्रांसवर्सालिस, ये जो 4 स्ट्रक्चर्स हैं, number 3 to 6, these 4 structures they form a sheath around the rectus abdominis muscle, which is a strap muscle of the anterior midline of the abdomen. ठीक है, तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपके आता है रेक्टस शीथ पे। ठीक है, रेक्टस शीथ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। So there is a term Langer's line.
just lines. Actually, depending upon the arrangements of the collagen fiber of the dermis, these lines are called as Langer's lines, where the bundles of collagens are arranged horizontally like this. तो अगर आप कोई भी एब्डोमिनल सर्जरी में अगर वर्टिकल इंसिजन लगाएंगे तो दैट मे बी प्रॉब्लमेटिक, ठीक है, उसका हील होने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा हीलिंग में। अगर जो हॉरिजॉन्टल इंसिजन होगा विच इज पैरेलल टू द लेंजर्स लाइन, सिर्फ एब्डोमेन पे नहीं है, पूरी बॉडी पे लेंजर्स लाइंस होती है स्किन में, ठीक है, एंड प्लास्टिक सर्जन हैज टू वेरी, ठीक है, जो प्लास्टिक सर्जरी जनरली करते हैं या कोई भी दूसरे उनको ये कोशिश करना होता है कि लेंजर्स लाइन के मैक्सिमम पॉसिबल पैरेलल में इंसिजन लगाए, ठीक है, तो उसका कॉस्मेटिकली बेटर अपीयरेंस होगा बाद में हीलिंग के बाद। दूसरा कॉम्प्लिकेशंस भी कम होते हैं। जो वर्टिकल इंसिजन्स होते हैं उसमें वापस जो एब्डोमिनल की जो एब्डोमिनल स्ट्रक्चर या लेयर्स हैं उनका अप्रोक्सीमेशन थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। स्किन की बात कर रहे हैं हम, तो लेंस ये इस इमेज को डालने का पर्पज यही था कि आपको उसका पता चले कि लेंजर्स लाइन क्या होती है, एक तो कोलाजन बंडल्स का अरेंजमेंट, दूसरा जो इंसिजन्स हैं वो किस तरह से लगाना चाहिए, उसका तरह से होना चाहिए पैटर्न। Next comes the fascia of the abdomen. Actually, in the lower abdomen, the superficial fascia is divided into two parts. Superficial fascia is divided into two parts. समझ गए? लोअर एब्डोमेन उसके दो पार्ट होते हैं, सुपरफिशियल फेशिया का भी एक सुपरफिशियल लेयर और उसका डीप लेयर, देन कम्स द डीप फेशिया ऑफ द एब्डोमेन। गेटिंग माय पॉइंट? सुपरफिशियल फेस, इस पे एमसीक्यू आता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तीन टर्म है। वन इज कार्पास फेशिया, द कॉलिज फेशिया, एक नेक्स्ट आएगा आपके कैंपर्स फेशिया। क्या होगा? कैंपर्स फेशिया। देखो स्कारपाज फेशिया, you can notice that it is continuous with the Colles fascia in case of inguinal region, ठीक है। एब्डोमेन का जो स्कारपाज फेशिया है वो किसके साथ कंटिन्यू हो रहा है? Colles फेशिया के साथ, ठीक है, और इसकी सर्जिकल इंपॉर्टेंस भी है। इन केस ऑफ रप्चर ऑफ द ब्लैडर, रप्चर ऑफ द ब्लैडर और द यूरिथ्रा, यूरिथ्रा का जब रप्चर होता है तो यूरिन का जो कलेक्शन है उसके बेसिस पे हम जो सर्जन है वो आइडिया लगा लेते हैं कि लेवल ऑफ रप्चर क्या है। समझ रहे? लेवल ऑफ रप्चर क्या यूरिथ्रा का? पेनाइल यूरिथ्रा का रप्चर है या फिर मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा है या प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, ठीक है। तो उसके लिए आपको यहाँ की जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स हैं इस एरिया की पूरी, उनका एक आइडिया होना चाहिए। और उससे पहले जो प्रीलिमिनरी आइडिया है वो आपका फेशिया का कंटिन्यूएशन है। हाउ द डीप लेयर ऑफ द एब्डोमिनल फेशिया इज कंटिन्यू विद द Colles फेशिया। तो कम टू द क्यूटेनियस नर्व्स ऑफ द एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। देखो यहाँ पे वर्टिब्रल लेवल क्या था, यहाँ पे जिफर्ड प्रोसेस पे T10 और नर्व कौन सी है? T7, ठीक है। तो तीन चीजें हो गई। एक तो हमने प्लेन्स लेवल देखा था विद रेस्पेक्ट टू दी वर्टिब्री, जो आपका ट्रांसपाइलोरिक, सबकोस्टल एंड द ट्रांसवर्कुलर। तो इन तीन चीजों में कंफ्यूजन नहीं होना है और आपको इनको तीनों को एक साथ पढ़ना जब भी पढ़ो, चाहे बुक में अलग अलग पेज पे हो, उनको एक साथ निकालो और डिस्कस करो।
प्लेन्स का वर्टिब्रल लेवल, ठीक है। जो बोनी लैंडमार्क्स या सॉफ्ट टिश्यू लैंडमार्क्स हैं जैसे जीफॉइड प्रोसेस, अम्लाइकस, उनका लेवल क्या है विद रेस्पेक्ट टू द वर्टिब्रल कॉलम। और तीसरा डर्मेटोम, अम्लाइकस पे कौन सा डर्मेटोम सप्लाई कर रहा है, T10, बट उसका वर्टिब्रल लेवल क्या है, L3 L4, ठीक है। These are the dermatomes, the anterior part of the trunk। देखो C4 के बाद क्या आया, T2, बाकी कहां गए, ब्रेकियल प्लेक्सस बनाया ना, C5 to T1, ठीक है। कल हम लोग आरपीएससी का एग्जाम देने गए थे तो उसमें एक क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग डर्मेटोम हैज लीस्ट चांसेस ऑफ ओवरलैपिंग बाय एनी अदर डर्मेटोम। ऑप्शंस वर E5, 6, 7, 8। चलिए अभी इस पे फोकस करो, डर्मेटोम्स। C4 के बाद T2, T3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, अम्लाइकस पे T10, 11, 12, and the inguinal region it is L1। चलो इसमें बताओ, यहां से जो पास हो रहा है आपका सबसे ऊपर वाला प्लेन, ट्रांसपाइलोरिक प्लेन, वो कौन से वर्टिब्रल लेवल से होता है, ट्रांसपाइलोरिक प्लेन कौन से वर्टिब्रल लेवल से होता है, बताओ। तीन प्लेन बताते, ट्रांसपाइलोरिक, सबकोस्टल एंड ट्रांसट्यूबरकुलर। पाइलोरिक कौन से लेवल से, वर्टिब्रल लेवल से पास हो रहा है, लोअर बॉर्डर ऑफ L1, बाकी वाले नीचे दोनों अपर बॉर्डर से हो रहे हैं। 1, 3, 5, ठीक है, 1, 3, 5। बाकी जो दोनों नीचे वाले प्लेन है, कोस्टल एंड ट्रांसट्यूबरकुलर, वो अपर बॉर्डर ऑफ द रेस्पेक्टिव वर्टिब्रा विच आई टोल्ड, और द ये L1 के लोअर बॉर्डर। comes to the superficial veins of the anterior abdominal wall। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो लीवर सिरोसिस के पेशेंट होते हैं, जो क्रोनिक एल्कोहलिक होते हैं, ठीक है, क्रोनिक एल्कोहलिक होते हैं, उनके केस में क्या होता है, लीवर के अंदर फाइब्रोसिस हो जाता है। क्या होता है, फाइब्रोसिस हो जाता है। तो जो आपका पोर्टल वेन इट इज टेकिंग ब्लड फ्रॉम द किचन, जो आपका इंटेस्टिन है जहां से एब्जॉर्प्शन हो रहा है सारे न्यूट्रिएंट्स का, इट इज टेकन बाय द पोर्टल वेन अप टू द लीवर। देन लीवर डिसाइड कि किस मॉलिक्यूल के साथ क्या करना है, किसको कितना स्टोर करना है, कितना ग्लूकोज आगे भेजना है, और इमरजेंसी रिक्वायरमेंट में कितना ग्लाइकोजिनोलाइसिस और वो सब, ठीक है। तो लीवर सिरोसिस के केस में क्या होता है, पोर्टल वेन का ऑब्स्ट्रक्शन। क्या होता है, पोर्टल वेन का ऑब्स्ट्रक्शन। पोर्टल वेन का ऑब्स्ट्रक्शन जब होता है तो जो अम्लाइकस के अराउंड की जो वेन्स है ये सब डायलेट हो जाती है। ये क्या होती है, डायलेट हो जाती, ठीक है। ये सुपरफिशियल, ठीक है। उस कंडीशन को क्या कहते हैं, कैपुट मेड्यूसी, कैपुट मेड्यूसी, ठीक है। तो क्रोनिक जो लीवर सिरोसिस के पेशेंट जो हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं, जैसे आप अनकवर करेंगे एब्डोमेन को, अम्लाइकस से रेडिएटिंग लाइंस होगी, ग्रीन लाइंस इज रेडिएट फ्रॉम दी अम्लाइकस, आर कैपुट मेड्यूसी। फॉर द टाइम बीइंग द एक्सिलरी वेन ड्रेन अपर पोर्शन अबव द अम्लाइकस, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, लेटरल थोरेसिक वेन। और ग्रेट सेफेनस वेन में क्या ड्रेन कर रहा है, सुपरफिशियल एपिगेस्ट्रिक वेन, ठीक है।
तो अम्लाइकस को क्या कहते हैं? एक वाटरशेड लाइन, इट फॉर्म्स ए वाटरशेड लाइन एंड द आर्टरीज और द एब्डोमिनल वॉल। तो एब्डोमेन को आर्टरीज कौन सी सप्लाई कर रही है? एक तो इंटरनल थोरेसिक, इट इज ए ब्रांच ऑफ इंटरनल थोरेसिक, किसकी ब्रांच? फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी। देखो इंटरनल थोरेसिक की एक ब्रांच जिसको कहते हैं सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक, और दूसरा इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक, ठीक है। सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक और इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक, ये दो मेन आर्टरीज हैं जो एब्डोमेन को, ये एंट्री एब्डोमिनल वॉल को सप्लाई कर रही है। अलॉन्ग विद दीज द पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज and the three branches of this femoral artery, proximal part, जो सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक, डीप सर्कम्प्लेक्स और सुपरफिशियल सर्कम्प्लेक्स, ठीक है। इनको अभी आपको जो है वो यही ध्यान रखना है, सुपीरियर एंड इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक अभी के लिए। लिम्फ नोड्स में भी वाटरशेड लाइन अम्लाइकस। देखो अम्लाइकस पे क्वेश्चन एक बार थोड़े टाइम पहले मैंने चेक की थी, कॉपी हेल्थ यूनिवर्सिटी की, उसमें था, ठीक है। अम्लाइकस पे शॉर्ट नोट था, तो उसमें आपको इसका डेवलपमेंट, अपीयरेंस, लेवल, इंपॉर्टेंस, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंस होता है फ्रॉम ए लेमैन पॉइंट ऑफ व्यू? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अम्लाइकस? हाँ तुम बताओ। हाँ तुम्हें जोशी नाम है ना, सरनेम? हाँ कोई बात नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, बताओ अम्लाइकस की क्या इंपॉर्टेंस? इधर एक डॉक्टर, आम आदमी अगर अम्लाइकस को उसको पूछें तो क्या बताएगा, उसकी क्या इंपॉर्टेंस इन ह्यूमन लाइफ? लोगों ने सोचना बंद कर दिए क्या बिल्कुल ही? न्यूबॉर्न बेबी को देखा है, उसके अम्लाइकस पे कुछ होता है, थ्रेड लाइक, कोड लाइक स्ट्रक्चर। अम्लाइकल कोड का अटैचमेंट ये तो बहुत सिंपल है, इसलिए मैं कह रहा हूं लेमन के से क्या होगा उसका इंपॉर्टेंस। सो ये जो वाटरशेड लाइन है, इसके ऊपर से सब जो सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स है वो किसमें ड्रेन कर रहे हैं? एक्सिलरी में, और उसके नीचे वाले इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स में। देन कम टू द रीजन्स ऑफ द एब्डोमेन। ये क्या है? रीजन्स, वेरियस रीजन्स। देखो ये जो 4 इमेजिनरी लाइन्स हैं उसमें हम इनको डिवाइड करते हैं। सेंट्रल इज द अम्लाइकल रीजन। सेंटर क्या है? अम्लाइकल रीजन। इसके जस्ट ऊपर और नीचे हाइपोगैस्ट्रिक, फिर इधर से हाइपोकॉन्ड्रियक, इधर राइट हाइपोकॉन्ड्रियक। कॉन्ड्रियक वर्ड के लिए आता है कार्टिलेज, ठीक है, के लिए आता है कार्टिलेज। देन राइट एंड लेफ्ट फ्लैंक्स और द लंबर रीजन, राइट और लेफ्ट लंबर क्वाड्रेंट, ठीक है।
देन इलायक, क्या होते हैं? इलायक रीजन जो आपका इलियम है उसका मीडियल सरफेस, अपर पोर्शन का मीडियल सरफेस जहाँ पे इलाइक फोसा होता है। इलाइक का मसल का ओरिजिन होता है इलाइक फोसा से, और ओवरी जो है वो इलाइक फोसा लाई करती है, ठीक है। और क्या क्या पास होता है इलाइक फोसा से? इलाइकस के अलोंग मीडियल टू द इलाइकस ऑफ सॉस मेजर, ठीक है। So if a lady presenting to the OPD having complaint of pain in the right or left iliac fossa, ठीक है, in case of flexion of the hip joint, if she is feeling pain in the iliac fossa, which means flexion of the psoas major and the iliacus, ठीक है। तो जनरली मीनिंग क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ दी ओवरी, ओवरी का इरिटेशन होता है, तो वो ओवरी से जो पस, इन्फ्लेमेशन की वजह से जो पस आउट आ रहा है वो सोस मेजर और इलाइकस को भी इरिटेट करता है, इसलिए वो उनके मसल्स के फ्लेक्शन पे पेन होता है इलाइक फोसा। ओनली राइट साइड में है तो उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस अपेंडिसाइटिस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये 9 रीजन समझ में आ गए, ये आपके सरफेस मार्किंग में बहुत काम आते हैं। जैसे लीवर का सरफेस मार्किंग करना है तो आपको पता है कि लीवर मेनली यहाँ पे होगा, ये दिख रहा है, ठीक है। तो कौन से यहां तक आ रहा है? लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक तक, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन, एपिगैस्ट्रिक रीजन, राइट हाइपोकॉन्ड्रियक एंड राइट लंबर में भी, ठीक है। तो ऐसे ही जितने भी विसराज हैं उनकी लोकेशन आपको क्वाड्रेंट के रेस्पेक्ट में पता होनी चाहिए, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा विसरा कहां तक एक्सटेंड है। फेसिया में हमने देखा 3 टर्म है, कैम्पर्स, स्कार्पा एंड कोलिस। कैम्पर्स इज द सुपरफिशियल फैटी लेयर of the superficial fascia. The scarpa is the membranous deep layer of superficial fascia, ठीक है। और जो कोलीज फेशिया है वो क्या है? पेरिनियल रीजन का है, स्क्रोटम एंड इंग्वाइनल रीजन का कोलीज फेशिया है, विच कंटिन्यूज विद द स्कार्पास फेशिया। तो तीनों टर्म समझ में आ गई, कैम्पर्स, देन स्कार्पा, then scarpa continues with कोलीज, ठीक है। सूरज समझ आ गया? बताओ फिर। बताओ तीनों टर्म का मीनिंग और एक्सटेंशन। Now come to the muscles of the abdominal wall. External oblique, external oblique, देखो जैसे इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, एक्सटर्नल है और oblique, इंटरनल oblique, ट्रांसवर्सस एब्डोमिनी, सिंपल है, जैसे ट्रांसवर्सस थोरेसिस था। तो जो एक्सटर्नल ऑब्लिक है उसका डायरेक्शन ऐसे होता है फाइबर्स का, जैसे आप पॉकेट में जैकेट और उसके पॉकेट में रखते हैं ना, ठीक है। एक्सटर्नल ऑब्लिक का कैसा होता है? ऐसे, विच मीन्स इस साइड से ओरिजिन होता है और इधर मिड लाइन की तरफ इंसर्शन, ठीक है। इंटरनल ऑब्लिक का इसके 90 डिग्री पे होता है, इस तरह से, ठीक है। तो उसका भी सिमिलर है, ओरिजिन इस तरफ से है और इंसर्शन मिड लाइन की तरफ है। ट्रांसवर्सस एब्डोमिनी ऐसे, तो उसका भी सेम हो गया, इधर से ओरिजिन हो रहा है, इधर इंसर्शन मिड लाइन की तरफ, ठीक है। तो तीनों का क्या है? मिड लाइन की तरफ इंसर्शन है, और मिड लाइन में क्या है? रेक्टस एब्डोमिनी। तो जो इन तीनों मसल्स के जो
फाइबर्स जो होते हैं जो ओरिजिन की तरफ हैं वो सब मस्क्यूलर है, उसमें स्मूथ मसल्स का कंपोनेंट ज्यादा है। एज एंड व्हेन दे प्रोग्रेस टुवर्ड्स द मिड लाइन, नंबर ऑफ कोलाजन फाइबर्स इंक्रीजेस विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एपोन्यूरोसिस ऑफ मसल्स। क्या होता है? अपोन्यूरोसिस। तो किसी भी मसल का अपोन्यूरोसिस, जैसे बाइसेप्टियल अपोन्यूरोसिस, अपोन्यूरोसिस का मीनिंग क्या है? उसमें स्मूथ मसल के फाइबर्स कम हो गए हैं, कोलाजन फाइबर्स हो गया है ज्यादा। ठीक है, तो एक्सटर्नल ऑब्लिक का ओरिजिन कहां से हो रहा है? लोअर 8 रिब्स, लोअर 8 रिब्स। ठीक है, तुमने थोरैक्स डिसेक्शन किया होगा तो तुमने देखा होगा कि जो सेरेटस एंटीरियर है और जो एक्सटर्नल ऑब्लिक है वो दोनों ऐसे इंटरडिजिटेट होते हैं। एक्सटर्नल ऑब्लिक ऐसे जा रहा है, सेरेटस पीछे की तरफ। ठीक है, तो लोअर 8 रिब्स से ओरिजिन हो रहा है। इंसर्शन कहां हो रहा है? मिड लाइन में। देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम जिफर्ड प्रोसेस, लीनिया एल्बा, क्यूबिक क्रेस्ट, क्यूबिक ट्यूबरकल एंड इलाइक क्रेस्ट। जब हिप पड़ी थी तब देखा था ना एक्सटर्नल ऑब्लिक का इंसर्शन इलाइक क्रेस्ट पे। ठीक है, और उसके मीडियल में इंटरनल ऑब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस का ओरिजिन। ठीक है, एक्शन क्या है? देखो, नर्व सप्लाई तीनों मसल्स की सेम है, इसलिए तुम्हें नेक्स्ट इमेजेस में नर्व सप्लाई पे फोकस नहीं करना। लोअर 6 बेसिक नर्व्स, मतलब T7 टू T12 जो है वो स्पाइनल नर्व इन तीनों मसल्स को सप्लाई करती है। तीनों मसल्स का इंसर्शन मिड लाइन की तरफ है, ओरिजिन लेटरल साइड से। ठीक है, डायरेक्शन मैंने बता दिया, एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक का और ट्रांसवर्स का। मतलब एक्सटर्नल ऑब्लिक के फाइबर्स किस तरह से डायरेक्ट होंगे? अपर 8 रिब्स से ओरिजिन हो रहे हैं तो डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, फॉरवर्ड्स एंड मीडियली। इंटरनल ऑब्लिक के अपवर्ड्स, फॉरवर्ड्स एंड मीडियली। ठीक है, ठीक है, और ट्रांसवर्स के एंटीरियरली इन द टुवर्ड्स द मिड लाइन। एक्शन भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। ऑल दीज 3 मसल्स दे आर हैविंग सेम नर्व सप्लाई, same action, same orientation of the fibers. Means their aponeurosis are lies in the midline, their originates from the lateral side or the parasagittal location. Action क्या? They support the abdominal contents, assist in forced expiration after exercise. ठीक है, जो फोर्स्ड रेस्पिरेशन या फोर्स्ड एक्सपिरेशन होता है उसमें क्या है? ये असिस्ट करती। मिक्चुरेशन, डिफिकेशन, पार्ट्यूशन एंड वॉमिटिंग। ठीक है, मिक्चुरेशन में भी क्या होती है? मसल्स कंप्रेस करती है ब्लैडर को, कंप्रेस करती है ब्लैडर को। ठीक है, तो ये कौन सी मसल है? एक्सटर्नल ऑब्लिक। जो जो पॉइंट्स मैंने बताए थे उनको ऑब्जर्व करो। ओरिजिन फ्रॉम अपर 8 रिब, गोइंग डाउनवर्ड्स, फॉरवर्ड्स, मीडियली, गेट कन्वर्टेड इनटू एपोन्यूरोसिस टुवर्ड्स देयर इंसर्शन। ठीक है, देखो, लाइन ऑफ डिमार्केशन बिटवीन मस्कुलर एंड एपोन्यूरोटिक पार्ट। और ये क्या? इंग्वाइनल लिगामेंट। इंग्वाइनल लिगामेंट इज नथिंग एल्स, इट इज जस्ट द इनफोल्डिंग ऑफ द लोअर बॉर्डर ऑफ द एक्सटर्नल ओब्लिक मसल। जो एक्सटर्नल ओब्लिक मसल का है पार्ट, उसकी इनफोल्डिंग है बस। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इंग्वाइनल लिगामेंट। और वो ऐसे हुक लाइक होती है, जे शेप। क्या होता है? जैसे एक्सटर्नल ओब्लिक का ये लोअर पोर्शन है, ये वाला। ठीक है, This is in between the anterior iliac spine and cubic tubercle. वो किसी पे इंसर्ट तो हो नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है? कॉन्केविटी। हिप बोन आपने देखी हो तो क्या यहाँ पे कॉन्केविटी, थोड़ा डिप्रेस्ड एरिया। ठीक है, और इसके नीचे से वो कॉन्केविटी किसके लिए? टू गिव पैसेज टू दी femoral vessels एंड नर्व। तो आप ये जो पोर्शन है इंग्वाइनल, इसका एक्सटर्नल ऑब्लिक का जो इंसर्ट हो रहा है, ठीक है, फिर यहाँ से इलाइक ट्यूबरकल, ये जो पोर्शन इसके नीचे डायरेक्ट
बोन कॉन्टेक्ट में नहीं है. दिस पोर्शन फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ. ठीक है, ऐसे फोल्डिंग हो जाती है, जिसको हम कहते हैं इंग्वाइनल लिगामेंट. ठीक है, और फिर इस इंग्वाइनल लिगामेंट पे क्या होता है कि ये जो जे बन रहा है, उस जे का ये जो पोर्शन है जो खुला अभी तक ओपन है, इसको फेसिया ट्रांसवर्सैलिस कवर करता है. फेसिया ट्रांसवर्सैलिस कवर करता है. दैट इज हाउ द कैनाल फॉर्म्स विच इज कॉल्ड एज इंग्वाइनल कैनाल. ठीक है, ये कैनाल बन गई, इसको क्या बोलते हैं? इंग्वाइनल कैनाल. समझते हैं? लोअर बॉर्डर ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस फोल्ड अपॉन इटसेल्फ. ठीक है, और एक जे शेप ऐसे बन जाता है, उसको हम इंग्वाइनल लिगामेंट बोल रहे हैं. और उस इंग्वाइनल लिगामेंट का जो जे शेप बन रहा है उसके ऊपर फेसिया ट्रांसवर्सैलिस कवर कर रहा, तो उसको हम इंग्वाइनल कैनाल. और इस कैनाल की जो दो ओपनिंग होती है, दैट इज सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग एंड यहां पे क्या होगी? डीप इंग्वाइनल रिंग. ये कौन सी मसल है बताओ? इंटरनल ऑब्लिक डायरेक्ट फाइबर्स की. कहां से ओरिजिनेट, कहां से हो रहा है? देखो, इंग्वाइनल लिगामेंट से ओरिजिन है इसका, लेटरल 2/3 से. ठीक है, इलाई क्रेस्ट से है, देन थोरेकोलम्बर फेशिया. सो देयर आर 3 साइड्स ऑफ ओरिजिन. ठीक है, फिर फाइबर इस तरह से डायरेक्ट है मिड लाइन में. ये कौन सी है? ट्रांसवर्सस एब्डोमिनी. इसका ओरिजिन कहां कहां से हो रहा है? इनर सरफेस ऑफ लोअर 6 कोस्टल कार्टिलेजेस. इनर सरफेस ऑफ लोअर 6 कोस्टल कार्टिलेजेस, क्योंकि ये तीनों में से सबसे डीप है. ठीक है, फिर थोरेकोलम्बर फेशिया, इलाई क्रेस्ट एंड द लेटरल 1/3 ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट. इंटरनल ऑब्लिक कहां से? लेटरल 2/3 से हो रही थी, ये लेटरल 1/3 से. देखो, इंग्वाइनल लिगामेंट को अगर सिंपली आप डिफाइन करो, इज जस्ट द लोअर बॉर्डर और द इनफोल्डिंग ऑफ द लोअर बॉर्डर ऑफ द एक्सटर्नल ऑब्लिक. बट उस पर लॉन्ग क्वेश्चन आता है, और ना केवल लॉन्ग क्वेश्चन, कुछ सर्जन थ्रू आउट लाइफ पूरी जिंदगी इंग्वाइनल लिगामेंट के अराउंड ही बिताते हैं. समझ रहे मेरे कहने का मतलब? हर्निया रिपेयर या हर्निया स्पेशलिस्ट जो सर्जन होते हैं. ठीक है, तो इंग्वाइनल लिगामेंट अगर सिंपली आप डिफाइन करें तो मैंने बता दिया कैसा होगा, और अगर उसको डिटेल में पढ़ें तो बहुत कॉम्प्लेक्स है. ठीक है, पर समझने के लिए एक अंडर ग्रेजुएट के लिए इतना एनफ है कि एक लोअर बॉर्डर जो है एक्सटर्नल ऑब्लिक का एपोन्यूरोटिक बॉर्डर, उसका क्या है? इनफोल्ड. उसके बाद फेसिया ट्रांसवर्सैलिस इंग्वाइनल कैनाल बनता है. तो अभी के लिए इतना बहुत है, आगे तुम लोग इसको डिटेल में पढ़ना. ठीक है, सेकेंड टाइम पढ़ो तब. पहली बार में अगर तुम चलेगी रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट, प्यूपार्ट्स लिगामेंट, पेक्टिनियल लिगामेंट, ठीक है, तो मुश्किल हो जाएगा. इनका हमने देख ही लिया. देखो, ये सब सेम है, नर्व सप्लाई और एक्शन. तो ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस भी देख लिया, उसकी डायरेक्शन और फाइबर्स की. नेक्स्ट इज क्रीमेस्टर मसल. क्रीमेस्टिक रिफ्लेक्स, एक आप लोग जब टेस्टिस या स्क्रोटम की क्लास होगी तो उसमें क्रीमेस्टिक रिफ्लेक्स पढ़ाएंगे, तो उसमें क्रीमेस्टर मसल आपको डिटेल में बताएंगे. नाउ कम टू द रेक्टस एब्डोमिनिस. अभी तो आधा ही नहीं हुआ लेक्चर. इंग्वाइनल कैनाल की डिटेल्स, इंग्वाइनल हर्निया, वो तो पूरा अपने आप में एक लेक्चर है. ये सर ने दोनों को कंबाइन कर दिया, 2 लेक्चर्स हो गए एक तरह से. तो जो शेड्यूल में लिखा है वो मैंने तुम्हें फर्स्ट स्लाइड में दिखाया था, तो पॉसिबल नहीं.
मैं तो कवर कर देता सारी स्लाइड्स डाल के, बट कोई फायदा नहीं है। जब आप एब्डोमेन स्टार्ट करें तो आपको पहले बेसिक्स पता होने चाहिए एब्डोमेन के, जैसे हमने रीजन्स पढ़े, लेवल्स पढ़े, प्लेन्स पढ़े, ठीक है, तो वो ज्यादा जरूरी है। मसल्स, अब जो बचा है दैट इज रेक्टस एब्डोमिनस और रेक्टस शीथ, ठीक है, और इस पे रेक्टस शीथ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसलिए थोड़ा इसको ध्यान से समझना। देखो ये कौन सी मसल है, रेक्टस एब्डोमिनस। इतनी देर हमने जो देखी थी इंटरनल ऑब्लिक, एक्सटर्नल ऑब्लिक, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, उनका मिडलाइन में क्या हो रहा है, एपोन्यूरोटिक फाइबर्स बन रहे थे। तो वो एपोन्यूरोटिक फाइबर्स क्या करते हैं, रेक्टस एब्डोमिनस को स्ट्रेंथन करते हैं। क्या करते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं, उसके आगे से पीछे से पास होते हैं, तो वो क्या होता है, स्ट्रेंथन हो जाते हैं रेक्टस एब्डोमिनस। तो दैट इज द रेक्टस शीथ। तो रेक्टस शीथ किससे बन रही थी, इन तीनों मसल्स से, और अलोंग विद द फेशिया ट्रांसवर्सालिस। तो रेक्टस एब्डोमिनस का ओरिजिन कहां से हो रहा है, यहां क्यूबिक सिम्फाइसिस से, क्यूबिक सिम्फाइसिस एंड क्यूबिक क्रेस्ट से, ठीक है। और फिर ये ऊपर इस तरह से फाइबर्स आर डायरेक्टेड टू द इंसर्शन एट द 5th, 6th and 7th costal cartilages and deferred process। ठीक है, नर्व सप्लाई सेम है, लोअर 6th thoracic नर्व, और एक्शन भी ऑलमोस्ट सेम है। कंप्रेशन, एब्डोमिनल कंटेंट जैसे हमने देखा यूरिनेशन, मिक्चुरेशन में, ठीक है, अलोंग विद फ्लेक्शन ऑफ द वर्टिबल कॉलम, ठीक है। जब सुपाइन पोजीशन से हम बैठते हैं, देयर इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रेक्टस एब्डोमेन। इसके अलावा जो नोटिस करने वाली चीज है दैट इज टेंडिनियस इंटरसेक्शन। इस पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डायरेक्टली आते हैं, विच वन ऑफ द muscle has the tendinous intersection। And what is the fascia transversalis? It is the fascia of the abdomen which continues with the adjoining fascias like diaphragmatic fascia superiorly and the pelvic fascia inferiorly, ठीक है। रेक्टस शीथ की वॉल, रेक्टस शीथ की वॉल, so these are the anterior and posterior walls of the rectus sheath। देखो इसमें दो तीन लैंडमार्क है हॉरिजॉन्टली जो है, वन इज द कोस्टल मार्जिन, अदर वन इज द अम्बलाइकस, then in between or midway between the umbilicus and the pubic symphysis arcuate line। क्या है, arcuate line। coastal margin, umbilicus and the arcuate line। रेक्टस शीथ हम 4 कंपार्टमेंट में पढ़ेंगे। above the coastal margin, above, in between the coastal margin and the umbilicus, in between umbilicus and the arcuate line, एंड बिलो द आर्कुएट लाइन, ठीक है। ये जो चारों रीजन है इनका एंटीरियर वॉल भी होगा और पोस्टीरियर वॉल भी होगा, ठीक है। सो जो इजी वे है वो अंडरस्टैंड करने का वो ये डायग्राम है, ठीक है। अबाउ द कोस्टल मार्जिन एंटीरियर वॉल इज फाउंड बाय एक्सटर्नल ऑब्लिक, ईओ क्या है, एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस। तो जो रेक्टस मसल है उसके जस्ट एंटीरियरली क्या है, एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस, और उसके पोस्टीरियरली क्या है, डिफर्ड प्रोसेस, 6, 7 कोस्टल कार्टिलेजेस एंड द इंटरकोस्टल मसल। ये तो क्या हो गया, अबाउ द कोस्टल मार्जिन। B is showing between the costal margin and the umbilicus, ठीक है।
इसमें प्रॉपर रेक्टस शीथ की दोनों वॉल अच्छे से बन रही है, देखो, एंटीरियर भी और पोस्टीरियर भी। एंटीरियर में किसका कॉन्ट्रीब्यूशन है? इंटरनल और एक्सटर्नल का। पोस्टीरियर में इंटरनल ऑब्लिक का भी है और ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस का भी। ठीक है, ये बिलो दी अम्बलाइकस एंड अबव द आर्कुएट लाइन, इसमें तीनों मसल्स एंटीरियर है। पोस्टीरियर ओनली क्या है? फेसिया, ट्रांसवर्स। ये डायग्राम इसका एक ही तरीका, रेक्टस शीथ को आपको याद करना तो ये डायग्राम पहले रट लो, ठीक है, उसके बाद उसको पढ़ो और समझो नोट्स में से, जो बुक या जो भी है। और इस पे एमसीक्यू आपके नेक्स्ट में भी आएंगे, ठीक है। Like which one of the following does not contribute in formation of the posterior wall of the rectus sheath? तो क्वेश्चन तो पूरा होने दो, क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। लेवल, उसमें लेवल देंगे, अबव कोस्टल मार्जिन, बिटवीन कोस्टल मार्जिन अम्बलाइकस, बिटवीन अम्बलाइकस एंड आर्कुएट लाइन, बिलो द आर्कुएट लाइन। There are some nerves and arteries within the rectus sheath. So कौन सी? सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक एंड इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक। कॉमन एब्डोमिनल इंसिजन, वैसे अभी आपके काम के नहीं है, बट जब 8th-9th सेमेस्टर में सर्जरी पढ़ोगे तब ये वापिस आपको पढ़ने होंगे। सब कोस्टल इंसिजन को कोचर्स इंसिजन कहते हैं, ठीक है। मेकबर्नी पॉइंट पे जो है एक इंसिजन है, ठीक है। देन ट्रांसवर्स इंसिजन है। दिस लोअर ट्रांसवर्स इंसिजन इज यूज्ड फॉर द सिजेरियन। सबसे जो नीचे वाला लोअर ट्रांसवर्स इंसिजन, ये किस में यूज होता है? सिजेरियन सेक्शन, ठीक है। दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, इंग्वाइनल लिगामेंट फॉर्मेशन। जे बन रहा है उधर, लोअर बॉर्डर ऑफ द एक्सटर्नल ऑब्लिक। तो देखो ये क्या हो गया? इंग्वाइनल लिगामेंट, ठीक है। अब इसके ऊपर ऐसे फेसिया ट्रांसवर्सैलिस पोस्टीरियरली आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगी? इंग्वाइनल कैनाल। और फिर ये हो जाएगा फ्लोर, इंग्वाइनल कैनाल का फ्लोर हो जाएगा इंग्वाइनल लिगामेंट, ठीक है। एंट्री वॉल इंग्वाइनल कैनाल के एंट्री वॉल में क्या आ जाएगा? एक्सटर्नल ऑब्लिक, ठीक है। पोस्टीरियर वॉल में फेसिया ट्रांसवर्सैलिस। मेनली तो ये दो ही होंगे इंग्वाइनल कैनाल के एंट्री पोस्टीरियर वॉल में। लेटरल मीडियल में जो हमने पहले जैसे इंटरनल ऑब्लिक का ओरिजिन पढ़ा था इंग्वाइनल लिगामेंट से, लेटरल 2/3 से, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस का लेटरल 1/3 से पढ़ा था, ठीक है। मीडियल साइड में कॉन्जॉइंट टेंडन और वो जो सारी चीजें मैंने आपको बताई थी, ये रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट, पेक्टिनियल लिगामेंट, कूपर्स लिगामेंट, ठीक है। जैसे ये दिख रहा है ना, रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट। This is about the subinguinal space, subinguinal space below the inguinal ligament, ठीक है। so, ये मसल्स लाइकस, os मेजर, femoral triangle के कंटेंट्स, पेक्टिनियस, ये सब पास होते हैं। दिस इज दी हर्निया, ये क्या है? हर्निया। नेक्स्ट क्लास में हम इंग्वाइनल कैनाल को अच्छे से पढ़ेंगे, उसकी वॉल्स, हर्निया के टाइप, हर्निया कैसे होता है, हर्निया की मैकेनिज्म्स क्या है, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट हर्निया क्या है, किस एज में किस टाइप का हर्निया होता है, ठीक है। सो हाउ वुड यू डिफाइन द हर्निया? हर्निया को डिफाइन कैसे करेंगे? व्हाट इज हर्निया इन सिंपल टर्म? बताओ, कौन बताएगा हर्निया का?
व्हाट इज हर्निया? इन्वेजन किसी दूसरी जगह, नॉट दैट मच अप्रोप्रिएट। और कोई? देखो टेंटोरियल हर्निएशन भी होता है न्यूरो में, ठीक है, डायफ्रागमेटिक हर्निया भी होता है, इंग्वाइनल हर्निया है, एक आपकी मेनिंगोसील या माइलोमेनिंगोसील पढ़ा होगा तुमने स्पाइनल कॉर्ड के केस में, वो भी एक हर्निया है। तो बॉडी में बहुत सारी जगह हर्निया होता है। तो हर्निया की कॉमन डेफिनेशन क्या है? विच कैन कवर ऑल दी थिंग्स, जितने भी हर्निया है उनको कवर कर सके, उसकी एक जनरल डेफिनेशन क्या है हर्निया की? इट इज जस्ट द आउट पाउचिंग ऑफ द कंटेंट्स ऑफ ए कैविटी थ्रू इट्स कवरिंग, ठीक है। किसी भी कैविटी या स्पेस के अंदर जो कंटेंट है वो अगर आउट पाउच कर रहे हैं कहीं और बाहर जा रहे हैं, जैसे उसने बताया इन्वेजन, इन्वेजन थोड़ा ज्यादा हार्श वर्ड हो जाता है उसके लिए इन्वेजन, ठीक है, बट हाँ उससे सिमिलर है कि वो आउट पाउच करते हैं, अपने स्पेस के बाहर जाते हैं, उसकी कवरिंग को ब्रेक करके या फिर अलोंग विद इट्स कवरिंग, दैट इज हर्निया, ठीक है। तो एब्डोमिनल कंटेंट्स जो है वो फिर इंग्वाइनल कैनाल के अंदर आते हैं या इंग्वाइनल कैनाल में आके फिर बाहर स्क्रोटम में आते हैं या इंग्वाइनल रीजन में बाहर आते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? इंग्वाइनल हर्निया। अगर इलियम या जेजुनम जो है वो अम्लाइकस के रास्ते उसको ब्रेक करके बाहर आ रही है एब्डोमेन पे, दैट इज अम्लाइकल हर्निया, ठीक है। तो ये क्या है? हर्निया के टाइप, ठीक है। नहीं बस 2 मिनट में छोड़ रहा हूं, कोई इश्यू। तो हर्निया का आपको क्या है कि डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अम्लाइकल हर्निया या एब्डोमिनल हर्निया के ज्यादा चांसेस होते हैं इस टाइप के इंसिजन में, तो होते हैं इस टाइप के वर्टिकल इंसिजन में क्या होते हैं? ज्यादा चांसेस होते हैं हर्निएट होने के। So that was all about today's lecture. Thank you for your patience.